Rahim. Assalamu alaikum students. In this video we'll learn about the cell structure and their functions. We are studying the course Introduction to Biochemistry, and this is the second lecture according to the course outline, which I'm going to teach you. So in this lecture we are going to learn about the following key concepts. We'll learn about the cells and their types, then prokaryotes, their anatomies, eukaryotes, and their anatomies. So first of all, what are the cells and what are their different types? As you all know that life is based on small morphological units known as cells. So cells जो हैं वो बॉडी के सबसे छोटे यूनिट्स हैं जिनके ऊपर लाइफ बेस करती है. And there are two major types of cells. Number one, the eukaryotes, and number two, the prokaryotes. Eukaryotes, eu means good and karyon means kernel or nut. इसका मतलब है कि वो वाले सेल्स जिनके इर्द गिर्द एक कवरिंग हो, एक वो नट जो है वो कर्नल उसकी झिल्ली को कहते हैं या उसकी लेयर को कहते हैं जो नट्स के इर्द गिर्द होता है. तो इसका मतलब है कि जिनका न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन या एक झिल्ली के अंदर बंद हो, उसको वो यूकेरियोट्स हैं. While the prokaryotes, they lack a membrane enclosed nucleus. Prokaryotes में nucleus membrane में enclosed नहीं होता. इनका जो nucleus है वो open type होता है, मतलब that is not called a nucleus because it does not have a membrane around it. First we move on to prokaryotes. Prokaryotes comprise certain types of bacteria and they have relatively simple structures and they are unicellular organisms. Unicellular का मतलब है कि जो एक ही सेल से बने हुए हों, वो prokaryotes होंगे और इनमें ज़्यादातर बैक्टीरिया आते हैं. They are estimated to represent about half of Earth's biomass. ये तकरीबन अर्थ की हाफ बायोमास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मास को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं, अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, बहुत अबंडेंटली हर जगह पे पाए जाते हैं. इवन आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे मिलियंस के हिसाब से बैक्टीरिया मौजूद होते हैं. And prokaryotes are the most numerous and widespread organisms on Earth. This is because their varied and often highly adaptable metabolisms suit them to an enormous variety of habitats. ये चूंकि इनके जो adaptable metabolisms हैं, ये अभी हम next slides पे देखते हैं कि ये कैसे इनको support करते हैं कि ये बहुत सारे different habitats के अंदर जिंदा रह सकते हैं. अब अगर देखें तो नॉर्मल जो एरोबिक एनवायरनमेंट्स में जहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, इसके अलावा बैक्टीरिया बहुत सी जगहों पे पाए जा सकते हैं. Certain types of bacteria, they may even live in hostile conditions to eukaryotes. Hostile का मतलब है कि जहाँ पे यूकेरियोट्स ना रह सकें, जो अनफ्रेंडली हों. ऐसे एनवायरनमेंट्स में भी बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं. फॉर एग्जांपल, हाई टेम्परेचर्स as high as 130 degrees centigrade and lack of oxygen, they can even live in the environment without oxygen. और इसके अलावा इनको एक और कौन सा एडवांटेज है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल और बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं कि their reproductive rate is very rapid. They take around 20 minutes for dividing per cell. So one bacterium can make two bacteria in roughly 20 minutes. तो इतनी ज़्यादा इनका जो रिप्रोडक्टिव रेट है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. Next we move on to the anatomies of prokaryotes. We will see how prokaryotes are made. So
If we look at their sizes, they mostly range from 1 to 10 micrometer, and they have one of the three basic shapes, which are spheroidal. They are cocci, rod-like, the bacilli, and helically coiled, which are spirilla. आप राइट साइड पे फिगर के अंदर देख सकते हैं ये हेलिकली कॉइल्ड जो हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन स्पाइरलियम। इसी तरह जो बेसिलस है वो रॉड लाइक हैं। आप ये बेसिलस को देख सकते हैं, ये रॉड लाइक इसकी जो शक्ल है। और स्फेरिकल जो है कोकाई, यू कैन सी द स्टेफिलोकोकस, दे आर स्फेरिकल बैक्टीरिया। तो ये इनकी डिफरेंट एनाटमीज हैं, इन शेप्स के अंदर ये पाए जाते हैं। और ये इनका साइज जो है 1 से 10 माइक्रोमीटर की रेंज में होता है। So they have the same general design. This is a picture of a general unicellular organism. इनके अंदर मोर और लेस सिमिलर जो ऑर्गेनेलिज होती हैं और इनका जो डिज़ाइन है वो सिमिलर होता है। बाकी इनकी शेप्स जो हैं वो रॉड लाइक या राउंड या डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन बेसिक असेंबली एक जैसी होती है। तो इसमें अगर हम देखें तो इनकी ये जो प्रोट्रूजन्स लाइक लंबी लंबी ये बालों की तरह की चीज़ें हैं, इनको फ्लैजेला कहते हैं। ये मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। इसी तरह इनके अंदर न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता। और पाइली, मीजोसोम, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, ये सारे ऑर्गेनेलिज होते हैं। इनकी डिटेल्स को हम नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर देखते हैं। So they are bounded, as are all cells, by an almost 70 angstrom thick cell membrane, which is also called the plasma membrane. ये इनके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड आम ऑर्गेनिजम्स की तरह इसमें भी लिपिड बाइलेयर होती है। एक डुअल लेयर होती है लिपिड्स की, जिसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के पैसेज को कंट्रोल करती हैं। कौन सा मॉलिक्यूल अंदर आ सकता है सेल के और कौन सा नहीं आ सकता। और इसके अलावा वो प्रोटीन्स एज एंजाइम्स भी एक्ट करती हैं। बहुत सारे जो सेल्स हैं प्रोकैरियोट्स के, उनमें एक थिक पॉलीसेकेराइड की सेल वॉल भी होती है जो कि सेल को इंजरी से बचाती है। Most prokaryotes, they lack different organelles like the ones in the eukaryotes, लेकिन कुछ की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ फोल्डिंग सी बनी होती हैं जिनको मीजोसोम्स कहते हैं। यहाँ पे आप बॉटम में ये पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, ये मीजोसोम्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये इस तरह की फोल्डिंग सी बनी हुई होती हैं इनके अंदर, इन्हीं की मेम्ब्रेन की, तो उनको मीजोसोम्स कहते हैं। और मीजोसोम्स क्या करते हैं, दे आर द साइट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड सम अदर एंजाइमेटिक रिएक्शंस। जो प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म है, दैट इज बाय नो मींस अ होमोजेनस सूप। मतलब ये बिल्कुल एक जैसा होमोजेनस किस्म का सूप नहीं होता। इसके अंदर डिफरेंट चीजें हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक सिंगल क्रोमोसोम होता है जिसको जो कि कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, जिसके अंदर डीएनए मटेरियल होता है इसका, तो उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। बिकॉज इट डज नॉट हैव अ मेम्ब्रेन, अगर इसके गिर्द मेम्ब्रेन होती तो फिर हम इसको न्यूक्लियस कहते हैं। और the cytoplasm also contains different species of RNA, that is the ribonucleic acid, a variety of soluble enzymes. Enzyme mean different proteins that catalyze specific reactions, and many thousands of ribosomes, which are the sites of protein synthesis. These ribosomes range in their diameter is around 250 angstrom. Acha, many bacterial cells also possess a whip-like appendage known as flagella. So here you can see these flagella. ये movement के लिए use होते हैं। और इसके अलावा they also have small filamentous projections. They are called pili. ये आप देख सकते हैं। पाइली बेसिकली ये
अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं किसी ऑर्गेनिज्म सेल के ऊपर। ये जो बैक्टीरियल सेल अटैच होता है तो इट अटैचेस यूजिंग दीज पाइली। ये Escherichia coli, this is an example of prokaryotic cells. So we also abbreviate it as E. coli. It is the biologically most well-characterized organism as a result of its intensive biochemical and genetic study over the past 70 years. इसको बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया है बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल होने की वजह से। तो इसकी हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छी कैरेक्टराइजेशन मौजूद है। तो इसके जो सेल्स हैं वो मेमेलियन कॉलोन्स के अंदर रहते हैं और रॉड लाइक शेप के होते हैं। और इसका जो डीएनए है उसकी मॉलिक्यूलर मास 2.5 × 10⁹ डाल्टन्स होती है। So E. coli contains 3 to 6,000 different types of molecules, including proteins, nucleic acids, polysaccharides, lipids, and various small molecules and ions. अब आप देखें कि E. coli के अंदर 3 से 6,000 तक डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। इतना मतलब एक सेल का ऑर्गेनिज्म है लेकिन इसके अंदर इतने डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो कि इसकी मशीनरी को चला रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे आपको जो इमेज है इसमें स्टैंड E. coli का सेल आपको नजर आ रहा है जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो फिगर बी है इसके अंदर फ्लैजेलम वगैरह उसके क्लियर और पाइली नजर आ रहे हैं। ये आपको E. coli का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया है। Next we move on to eukaryotes. Eukaryotic cells are they are bigger cells. They are 10 to 100 micrometer in diameter, and thus they may be compared to the typical prokaryotes as they have 1,000 to 1,000,000 times the volume of a prokaryote. Actually, it is not the size, but an abundance of membrane-enclosed organelles, each within a specialized function that best characterizes eukaryotic cells. हम यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को साइज की बेस पे नहीं वो डिफर करेंगे कि जो इसका साइज बड़ा है तो ये यूकैरियोट है और उसका साइज छोटा तो वो प्रोकैरियोट है, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली डिफरेंट जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं मतलब क्लोज्ड ऑर्गेनेलीज जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं होती और यूकैरियोट्स में होती हैं, वो एक्चुअल कैरेक्टराइजेशन है जो कि इनको डिफरेंशिएट करती हैं। तो actually the eukaryotic structure and function are much more complex than those of prokaryotes at all levels of organization. ये एक जो एनिमल सेल है उसकी डायग्राम है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक डायग्राम, जिसमें आपको डिफरेंट ऑर्गेनेलीज यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इनमें आप आउटर देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन है और फिर सेंटर में एक आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, फिर उसकी आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, फिर उसके अंदर एक स्मॉल बॉडी है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं और क्रोमेटिन मटेरियल भी है उसके अंदर, दैट इज अ जेनेटिक मटेरियल। फिर आपको राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आ रहा है, स्मूथ और रफ दोनों, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रियोल्स एंड a vacuole. So we are going to study these organelles in details in the next slides. So if we compare the eukaryotes and prokaryotes, they have developed according to fundamentally different evolutionary strategies. Prokaryotes जो हैं उनको क्या advantage है? They have exploited the advantage of simplicity and miniaturization. एक तो सिंपल उनके सेल्स हैं, बहुत सिंपल, उनमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेलीज नहीं है, और दूसरे वो मिनिएचराइजेशन जो बहुत छोटे हैं और उनके जो रैपिड ग्रोथ रेट्स हैं वो इसलिए हर तरह के इकोसिस्टम्स के अंदर कोई बहुत थोड़ा सा अवेलेबल न्यूट्रिएंट होगा तो वहां पे भी वो जिंदा रह लेते हैं। तो ये उनको एडवांटेज है, तो वो इस हिसाब से
उनका जो एवोल्यूशनरी सिस्टम है वो चलता है। इन कंट्रास्ट अगर हम यूकैरियोट्स को देखें तो दे आर कॉम्प्लेक्स, लार्जर, दे आर स्लोली ग्रोइंग देन प्रोकैरियोट्स, और वो स्टेबल एनवायरनमेंट्स के अंदर रह सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। सो इसलिए अगर आप कंसिडर करें, it is erroneous to consider prokaryotes as evolutionary primitive with respect to eukaryotes. Um, वो जो प्रोकैरियोट्स हैं वो बहुत ओल्ड एजेस से अपना उनका अलग जो है वो सिस्टम और एवोल्यूशन है। और दोनों जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हैं वो अपने अपने लाइफस्टाइल को प्रॉपरली सूट करते हैं, मतलब दोनों की अपनी अपनी अफादियत है और अपना अपना उनके जो काम हैं उस हिसाब से वो उनका लाइफस्टाइल है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल को देखें इस आर्किटेक्चर लाइक प्रोकैरियोट्स, इट इज बाउंड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर भी एक सेल मेम्ब्रेन होती है, और इनके जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो है ये मच स्मॉलर है देन दोज ऑफ प्रोकैरियोट्स, क्योंकि इनका वॉल्यूम जो है वो और इनकी ओवरऑल सरफेस देखा जाए तो सरफेस एरिया इनका कम बचता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिज हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स है उसके अंदर कोई ऑर्गेनेली नहीं है, तो उसको एज अ होल हम उसका सरफेस एरिया कंसिडर करते हैं, इसलिए उसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा लार्जर है। और यूकैरियोटिक सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इस या जो सेल मेम्ब्रेन है इसके कुछ पोर्शन दे बड इनवर्ड। इसका मतलब है कि वो अंदर की तरफ छोटा सा बड बनाते हैं, जिस तरह मीजोजोम था उसके अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर। तो इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इसमें क्या करता है सेल बेसिकली कि कोई बाहर से अंदर जो है मटेरियल लेके आना है सेल के, तो वो थ्रू एंडोसाइटोसिस भी उसको सेल के अंदर लेके आ सकता है। और इसी तरह देखें ये ऊपर जो लिखा है, यूकैरियोटिक सेल्स कैन engulf and digest food particles such as bacteria, whereas prokaryotes are limited to absorption of individual nutrient molecules. तो जो यूकैरियोटिक सेल है ये थ्रू एंडोसाइटोसिस डिफरेंट फूड पार्टिकल्स को डायरेक्ट सेल के अंदर एनगल्फ कर सकता है, जबकि प्रोकैरियोट्स जो हैं वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स को अंदर ला सकते हैं, वो भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को। और देयर इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। इट इज अ कॉमन यूकैरियोटिक सिक्रीटरी मैकेनिज्म। इसके थ्रू डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं उनकी सीक्रीशन या एक्सक्रीशन होती है सेल से बाहर निकाला जाता है मुख्तलिफ चीज़ों को। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को अगर देखें तो दिस इज द यूकैरियोटिक सेल्स मोस्ट कंस्पिकुअस ऑर्गेनेली। इट इज द रिपोजिटरी ऑफ इट्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो कि विरासती इंफॉर्मेशन है या जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होती है, जिसकी बेस पे एक सेल 1 से 2 में तकसीम होता है या कन्वर्ट होता है, तो उसका सारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है यूकैरियोटिक सेल की। तो ये जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दैट इज बेसिकली इनकोडेड इन द सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये एक्चुअली डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर होती है इंफॉर्मेशन, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, एंड दे फॉर्म द डिस्क्रीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच स्पीशीज। डीएनए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं, और क्रोमोसोम्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट पोर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। ये आपको इस फिगर में यहाँ पे न्यूक्लियस की डायग्राम है, यहाँ पे अच्छी तरह से नजर आ रहा है। न्यूक्लियस के गिर्द एक उसकी अपनी मेम्ब्रेन है जिसको न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं, और उसके सेंटर में एक राउंड बॉडी है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्रोमोसोम्स जिनमें डीएनए होता है, दे कंसिस्ट ऑफ क्रोमेटिन, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो the amount of
genetic information carried by eukaryotes is enormous. जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है यूकेरियोट्स में वो बहुत ज़्यादा होती है. मतलब फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक वन ह्यूमन सेल दैट हैज़ ओवर 700 टाइम्स द डीएनए ऑफ ई कोलाई. अगर आप कंप्यूटर मेमोरीज की टर्म्स में देखें तो ह्यूमन सेल के अंदर जो एक ई कोलाई है उसकी निस्बत 700 गुना ज़्यादा डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है. तो अगर आप देखें genome को, the genetic complement in each human cell, that specifies around 800 megabytes of information. यानी कि एक सेल के जीनोम में तकरीबन 800 MB तक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. अगर आप उसको कंप्यूटर मेमोरी की टर्म में कंसिडर करें या कन्वर्ट करें तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपके पास अगर रफली 1000 पेजेस की बुक हो तो उसको हम रफली 30 to 35 MB के अंदर स्टोर कर सकते हैं, उसकी एक PDF फाइल बना सकते हैं. तो यू कैन कंपेयर के 800 मेगाबाइट्स के करीब इंफॉर्मेशन एक जीनोम के अंदर स्टोर होती है. तो हाउ enormous amount of information a human cell contains. So within the nucleus, the genetic information encoded by the DNA is transcribed into molecules of RNA. जो genetic information DNA के अंदर होती है उसको सेल के अंदर क्या किया जाता है, RNA मॉलिक्यूल राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर ट्रांसक्राइब किया जाता है, जो कि बाद में प्रोटीन सिंथेसिस के काम आता है. बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाता है सेल से साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जहाँ पे वो राइबोसोम्स के पास जाके तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है. राइबोसोम्स एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, लेकिन कौन सी प्रोटीन बनानी है ये उनको आरएनए से पता चलता है, जो कि डीएनए में से इंफॉर्मेशन लेके आ रहा होता है. तो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जो पोर्स होते हैं 90 एंगस्ट्रॉम वाइड पोर्स होते हैं, वो उनका क्या काम है कि ये आरएनए जो कि न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है उसको वहां से बाहर निकाला जा सके इन पोर्स के थ्रू और साइटोप्लाज्म में उसको भेजा जा सके. बहुत सारी जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनका न्यूक्लियस, उसके अंदर एक डार्क स्टैनिंग बॉडी होती है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं. न्यूक्लियोलस में बेसिकली राइबोसोम्स बनते हैं, राइबोसोमल असेंबली होती है और इसके अंदर मल्टीपल कॉपीज होती हैं उन जीन्स की जो कि राइबोसोमल आरएनए को स्पेसिफाई करते हैं या उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं. तो ये न्यूक्लियोलस के अंदर ट्रांसक्राइब होते हैं और जो रिजल्टिंग आरएनए है वो राइबोसोमल प्रोटीन्स के साथ मिलके तो वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि वहां से इंपोर्ट किए गए होते हैं साइटोसोल से. The resulting immature ribosomes are then exported to the cytosol where their assembly is completed. तो यहाँ पे ये जो अभी immature ribosomes हैं, complete synthesis इनकी नहीं होती, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए के बाद इनको साइटोसोल के अंदर भेज दिया जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर, और वहां पे इनकी असेंबली कंप्लीट होती है. तो इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है दैट एक्चुअली occurs in the cytosol or the cytoplasm. नेक्स्ट हम आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी apparatus की तरफ. The most extensive membrane in the cell, which was discovered in 1945, that forms a twisting compartment named the endoplasmic reticulum. अगर आप ये नीचे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पिक्चर दी हुई है, इसमें आप देखें तो ये ट्विस्टेड मेम्ब्रेन्स हैं जो कि डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बना रही हैं, इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. इसका एक बड़ा पोर्शन जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी दो टाइप्स हैं बेसिकली, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो रफ जो होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं लगे हुए जिनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो इसी वजह से उसकी अपीयरेंस रफ नजर आती है, उसको रफ कहते हैं. और स्मूथ वाला जो है वो आप राइट हैंड साइड वाली फिगर में देख सकते हैं, तो उसकी जो ओवरऑल अपीयरेंस है दैट इज स्मूथ. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं लगे होते, यहाँ पे लिपिड्स की सिंथेसिस होती है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं और वहां पे प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है. Many of the products synthesized in the endoplasmic reticulum, they are eventually transported to the Golgi apparatus. जब endoplasmic reticulum में products synthesize हो जाती हैं
तो उनको गोल्जी apparatus में भेजा जाता है, जो कि इसी तरह की दैट इज अ स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेनस सैक्स, और उनके अंदर ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स हैं, इनकी फिनिशिंग होती है और फर्दर प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट आते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है सेल की। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन ऑलमोस्ट ऑल यूकेरियोट्स। तकरीबन सारे यूकेरियोट्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये सेल की रेस्पिरेशन के काम आते हैं, यानी कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीजन के साथ जो एनर्जी गेन की जाती है फूड में से, वो काम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और ये ऑर्गेनेलिज जो हैं, इनका साइज और शेप जो है ये खास होते हैं। ये अमूमन एलिप्सॉइडल शेप के होते हैं और इनकी डायमेंशंस जो हैं 1/2 माइक्रोमीटर होती हैं, अब एक आम बैक्टीरियल सेल की तरह। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो दे रिजेंबल टू बैक्टीरियल सेल। एंड a eukaryotic cell typically contains around 2000 mitochondria, which occupy roughly 1/5 of its total cell volume. तकरीबन सेल का 5वां हिस्सा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया ने घेरा हुआ होता है। माइटोकॉन्ड्रियन को अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब स्टडी किया गया तो उससे पता चला कि इट हैज टू मेम्ब्रेन्स, अ स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन एंड अ हाईली फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है जिसके बहुत सारे फोल्ड्स बने हुए होते हैं, उन फोल्ड्स या इन्वेजिनेशंस को क्रिस्टी कहते हैं। एक को क्रिस्टा कहेंगे और प्लूरल क्रिस्टी। Thus the mitochondrion contains two compartments. इसके भी दो कंपार्टमेंट हो गए। The intermembrane space, जो membranes के दरमियान स्पेस होती है, and the internal matrix space, और जो ओवरऑल सेंटर में इसकी स्पेस होती है उसको internal matrix space कहते हैं। The enzymes that catalyze the reactions of respiration are components of either the gel-like matrix or the inner mitochondrial membrane. जो एंजाइम्स एक्चुअली रेस्पिरेशन के काम आते हैं या उन रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, वो या तो मैट्रिक्स के अंदर होते हैं या इनर जो मेम्ब्रेन होती है वहां पे पाए जाते हैं। और ये एंजाइम जो हैं ये क्या करते हैं, दे कपल द एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द एनर्जी रिक्वायरिंग सिंथेसिस ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट व्हिच इज कॉल्ड एटीपी। ये एंजाइम बड़े इंपॉर्टेंट है। देखें कि ये दो तरह के प्रोसेसेस कर रहे हैं। ये ऐसे प्रोसेस भी कर रहे हैं जिनके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, फॉर एग्जांपल जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन करके। और ये दूसरा ऐसा प्रोसेस भी कर रहे हैं जिनमें एनर्जी कंज्यूम होती है, यानी कि ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की सिंथेसिस भी कर रहे हैं। तो उस सिंथेसिस के दौरान एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो कि इस्तेमाल होती है, तो एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और ये आपको पता है कि एटीपी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्चुअली एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि बाहर में मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स मसल्स के अंदर यूज होते हैं, जिसकी वजह से हम मूवमेंट वगैरह करते हैं। And adenosine triphosphate after export to the rest of the cell fuels its various energy consuming processes. ठीक हो गया। जो ATP है वो सेल के अंदर यहाँ से बन के एक्सपोर्ट हो जाता है और फिर डिफरेंट जो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस हैं वहां पे एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया आर बैक्टीरिया लाइक इन मोर देन साइज एंड शेप। Their matrix space contains mitochondrion specific DNA, RNA and ribosomes that participate in the synthesis of several mitochondrial components. अब आप देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो उसकी अपनी एक मेम्ब्रेन है, वो पूरा एक बैक्टीरियल सेल लाइक चीज है। उसके अंदर अपना डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं जो कि डिफरेंट कंपोनेंट्स की सिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं। इस चीज को एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स में हम देख सकते हैं कि एक और बड़ी खास चीज है। आपको पता है कि बैक्टीरिया भी बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस होते हैं। एंड द रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस दे मेडिटेट बियर अ रिमार्केबल रिजेम्बलेंस टू दोज ऑफ मॉडर्न एरोबिक बैक्टीरिया। अगर आप एरोबिक बैक्टीरिया को देखें जो मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जिंदा रहते हैं, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका सारा जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है वो एरोबिक बैक्टीरिया से मिलता जुलता है।
इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलती है, which is now widely accepted hypothesis. It was initially given by Lynn Margulis. He said that mitochondria are evolved from originally free-living gram-negative aerobic bacteria which formed a symbiotic relationship with the primordial anaerobic eukaryote. वो कहता है कि जो बहुत प्राइमोर्डल पुराने जमाने में, मतलब व्हेन द लाइफ स्टार्टेड, जो यूकैरियोटिक सेल्स थे वो खुद रेस्पिरेटरी जो फंक्शन है वो नहीं कर सकते थे। तो बैक्टीरिया जो ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया हैं वो उनके साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते थे, मतलब सेल के साथ अटैच रहते थे। यूकैरियोटिक सेल उसे फूड प्रोवाइड करता था और वो इन टर्न हमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन करके, तो जो रेस्पिरेशन का काम है यूकैरियोटिक सेल का वो करके देते थे। एंड देन लेटर ऑन ये क्या हुआ कि वो पूरा बैक्टीरियल सेल फ्यूज होके सेल के अंदर आ गया, और एनगल्फ होके उसके अंदर आ गया, और वही माइटोकॉन्ड्रिया दैट वाज एक्चुअली दैट बैक्टीरियम। तो ये जो पीछे हमने ऑब्जर्वेशंस देखी हैं कि बैक्टीरिया बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसी तरह होते हैं, इनकी शेप्स एक जैसी हैं, इनके अंदर अपना डीएनए आरएनए जिस तरह होता है। तो ये चीज़ें इस एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करती हैं कि माइटोकॉन्ड्रियन जो था दैट वाज एक्चुअली अ बैक्टीरियम which was imported into the cell from that symbiotic relationship. ये सारी चीजें अभी हमने डिस्कस कर ली हैं। अभी आप माइटोकॉन्ड्रियन की अगर आप शेप देखें, ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं, तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि अमीबा है एक, पॉलीमिक्सा पेलुस्ट्रिस, पिलोमिक्सा पेलुस्ट्रिस। इसको अगर आप देखें तो ये ऐसा यूकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, और ये एरोबिक बैक्टीरिया के साथ एक ऐसे ही सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में अभी भी रहता है। तो इस चीज को देख के तो ये जो हाइपोथेसिस है ये और ज्यादा स्ट्रेंथन हुआ कि यूकैरियोट्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है दैट वाज ओरिजिनली अ बैक्टीरियम। नेक्स्ट आते हैं लाइसोसोम्स की तरफ। लाइसोसोम्स क्या हैं? They are organelles bound by a single membrane and they are of variable sizes and morphology, एंड जो इनका डायमीटर रेंज है वो ज़्यादातर 0.1 से 0.8 माइक्रोमीटर की रेंज में होता है, और ये बेसिकली मेम्ब्रेनस बैग्स हैं, और इनके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं which function to digest materials ingested by the endocytosis and to recycle cellular components। ये इनका काम बेसिकली क्या है? ये डाइजेशन के काम आते हैं, जो फूड सेल ने अप इनटेक किया है उसको ये डाइजेस्ट करते हैं। And cytological investigations have revealed that lysosomes form by budding from the Golgi apparatus। और जो सेल की स्टडीज से पता चला है कि गोल्जी अपरेटस के ऊपर छोटे छोटे बड निकलते हैं और वही बाद में लाइसोसोम्स बनाते हैं। Next is peroxisomes. Peroxisomes are microbodies and they are also membrane enclosed organelles, typically 0.5 micrometer in diameter, and they contain the oxidative enzymes। जो लाइसोसोम्स हैं उनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, पेरोक्सिसोम्स के अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। They are named so because some peroxisomal reactions generate hydrogen peroxide। कुछ जो इनके रिएक्शंस हैं उनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस होता है which is a reactive substance, and it is either utilized in the enzymatic oxidation of other substances or degraded through a disproportionation reaction catalyzed by the enzyme catalase। या तो ये एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल हो जाता है या फिर डिग्रेड कर दिया जाता है कैटालेज एंजाइम के थ्रू इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। एंड ये भी कहा जाता है कि पेरोक्सिसोम्स जो हैं ये सेंसिटिव सेल कंपोनेंट्स को ऑक्सीडेटिव अटैक से महफूज करते हैं, क्योंकि ये H2O2 को ब्रेक डाउन कर देते हैं वाटर और ऑक्सीजन के अंदर। एंड सर्टेन प्लांट्स, अब देखें प्लांट्स के अंदर दे कंटेन अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ पेरोक्सिसोम व्हिच इज कॉल्ड ग्लाइऑक्सिसोम, which is named so because it is a site of a series of reactions that are collectively termed the glyoxylate pathway। ये वो reactions करता है जिन जो ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे के अंदर होते हैं, इसलिए उनको ग्लाइऑक्सिसोम्स भी कहते हैं।
नेक्स्ट आता है जी साइटोसोल, द साइटोप्लाज्म. द साइटोसोल, far from being a homogeneous solution, is a highly organized gel that can vary significantly in its composition throughout the cell. साइटोसोल जो होता है वो बेसिकली एक होमोजेनस सोल्यूशन नहीं होता, बल्कि वो एक बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म का जेल होता है जिसके अंदर कॉम्पोजिशन जिसकी सेल के अंदर डिफरेंट होती है. इसकी एक जैसी कॉम्पोजिशन नहीं होती, इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती हैं. For example, it has a cytoskeleton, which is an extensive array of filaments that gives the cell its shape and the ability to move, and it is responsible for the arrangement and internal motion of its organelles. साइटोस्केलेटन है बेसिकली ये माइक्रोट्यूब जो फिलामेंट्स हैं उनका एक पूरा अरे है, एक नेटवर्क है जो कि सेल को इसकी शेप भी देता है, उसकी मूवमेंट में भी हेल्प करता है, और जो अंदर ऑर्गेनेल्स हैं उनको मूव करने में भी हेल्प करता है. इसके अलावा the most conspicuous cytoskeletal components, the microtubules, they are tubes that are composed of protein tubulin. जो microtubules हैं ये लंबी लंबी ट्यूब्स हैं जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनी हुई होती हैं. ये भी साइटोसोल के अंदर पाई जाती हैं. यहाँ पे आप डिफरेंट फिगर्स देख सकते हैं जिनके अंदर आप फिगर ए के अंदर आपको ट्यूब्यूलिन नजर आ रहा है, फिगर बी में आपको एक्टिन नजर आ रही है, ये भी एक प्रोटीन है, फिगर सी में कैराटिन नजर आ रही है, एंड फिगर डी में वाइमेटिन नजर आ रही है. ये डिफरेंट जो साइटोसोल के अंदर फ्रेमवर्क और नेटवर्क बना हुआ होता है डिफरेंट चीजों का, ये उनके इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स हैं. Cytoskeleton form the supportive framework that guides the movements of organelles within a cell. For example, mitotic spindle is an assembly of microtubules and associated proteins that participates in the separation of replicated chromosome during cell division. माइटोटिक स्पिंडल वो असेंबली है माइक्रोट्यूब्यूल्स की और प्रोटीन्स की जो कि जब सेल की डिवीजन होती है, जब एक से दो सेल बनते हैं तो जो क्रोमोसोम रेप्लिकेट होते हैं या एक से दो बनते हैं तो उनकी सेपरेशन में ये माइटोटिक स्पिंडल हेल्प करता है. इसी तरह माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, दे आर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीलिया, the hair-like appendages extending from many cells whose whip-like motions move the surrounding fluid past the cell or propel single cells through solution. ये बेसिकली सिलिया बनाते हैं जो कि सेल को मूव करने के काम आते हैं या सेल के इर्द गिर्द जो सोल्यूशन होता है उसको हटाने के काम आते हैं. Now, if we look at the plant cell, they have certain differences from the animal cell. They are enclosed by a rigid cell wall. Plants में एक extra चीज होती है cell membrane के बाहर जो कि cell wall होती है. And plant cell contain the rigid cell wall which lies outside the plasma membrane. ये जो cell walls हैं, इनका major component क्या है? Fibrous polysaccharide, that is cellulose, which accounts for structural strength of the plants. क्योंकि ये सेल वॉल होती है प्लांट के सेल्स के अंदर, इसलिए प्लांट्स की जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है वो इस वजह से है, ये उनकी मेन वजह है. एनिमल्स में चूंकि ये नहीं होती तो एनिमल्स की बॉडी सॉफ्ट होती हैं, प्लांट्स की हार्ड होती हैं बिकॉज दे हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल्स. ये एक टिपिकल प्लांट सेल की डायग्राम आप देख सकते हैं. इसमें आप न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये जो आउटर देखें ये इसकी कवरिंग है, ये सेल वॉल है. ये एक थिक वॉल है जो कि इसको प्रोटेक्ट भी करती है और इसको स्ट्रेंथन भी करती है. इसके अलावा उनके अंदर जो वैक्यूल होता है प्लांट सेल के अंदर, ये लार्ज साइज का वैक्यूल होता है. एनिमल सेल में छोटे एक से ज्यादा वैक्यूल्स हो सकते हैं, प्लांट सेल के अंदर एक बड़े साइज का वैक्यूल होता है. इस चीज को भी आगे हम डिस्कस करते हैं. A vacuole is a membrane enclosed space filled with fluid. Although vacuoles occur in animal cells, they are most prominent in the plant cells, where they typically occupy 90% of the volume of a mature cell. तो देखा आपने कि वैक्यूल जो है ये मैच्योर सेल का तकरीबन 90% तक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है. ये इतना बड़ा वैक्यूल होता है प्लांट सेल्स के अंदर. इसलिए ये प्लांट सेल का वैक्यूल एनिमल का डिफर करता है. वैक्यूल का काम क्या है? इट फंक्शंस एज स्टोरेज डिपोट्स फॉर न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड स्पेशलाइज्ड मटेरियल सच एज पिगमेंट्स. ये एज अ स्टोरेज डिपो काम करता है. इसके अंदर मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट होते हैं
वेस्ट भी स्टोर होते हैं और अदर स्पेशलाइज्ड मटेरियल स्टोर होते हैं। इसके अलावा वैक्यूल की एक और खास चीज़ थी, जो छोटे प्लांट्स हैं जिनके अंदर अभी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती, वो अपने आप को, जो उनका स्टेम है उसको कैसे खड़ा रखते हैं, उनका वैक्यूल उसके अंदर वाटर प्रेशर से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो रिजिड हो जाता है और वो प्लांट अपनी जो शेप है उसको उसकी वजह से बरकरार रख पाते हैं। नेक्स्ट है जी क्लोरोप्लास्ट्स। Chloroplasts are the characteristics of plant cells। ये भी एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होते। इनका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। जो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। एंड इट इज एक्चुअली जनरली सेवरल टाइम्स लार्जर देन अ माइटोकॉन्ड्रियन। ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियन की तरह की मशीनरी है, लेकिन काफी उससे साइज में बड़ी है। और it also has an inner end and outer membrane like mitochondria। इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन की स्पेस होती है, जो मेम्ब्रेन के अंदर स्पेस है, उसको स्ट्रोमा कहते हैं। It is similar to the mitochondrial matrix। It contains many soluble enzymes। इसी तरह जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह फोल्डिंग्स में नहीं कन्वर्ट होती, वो क्रिस्टी नहीं बनाती, बल्कि वो जो स्ट्रोमा है, इट एनक्लोजेस अ थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम दैट फॉर्म्स इंटरकनेक्टेड स्टैक्स ऑफ डिस्क लाइक सैक्स कॉल्ड थाइलेकॉइड्स। इसके अंदर जो डिफरेंट डिस्क लाइक थैलियां होती हैं जिनको थाइलेकॉइड्स कहते हैं, और उनके अंदर एक्चुअली वो पिगमेंट होता है जो क्लोरोफिल कहलाता है, which is photosynthetic pigment। थाइलेकॉइड क्या करता है? इट यूजेस क्लोरोफिल ट्रैप्ड लाइट एनर्जी टू जनरेट एटीपी। ये जो क्लोरोफिल है ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और उसको यूज करके ये एटीपी बनाते हैं, जो कि डिफरेंट बायोसिंथेटिक रिएक्शंस के दौरान इस्तेमाल होती है और कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उस एनर्जी को यूज करके। इसी तरह जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए और आरएनए होता है, इस तरह क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी अपना डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स होते हैं, और ये फिशन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर आप apparently chloroplast much like mitochondria evolved from an ancient cyanobacterium that took up symbiotic residence in an ancestral non-photosynthetic eukaryote। तो ये कहा जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये उसकी तरह क्लोरोप्लास्ट है, ये भी एक साइनोबैक्टीरियम था जिसने सिम्बियोटिक रेजिडेंस रखी हुई थी नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट के अंदर। तो बाद में ये उसके साथ मर्ज हो गया, तो ये इससे जो ये मॉडर्न प्लांट सेल्स हैं वो इस तरह से इवॉल्व हुए। Hence, most modern eukaryotes are genetic mongrels in that they simultaneously have nuclear, mitochondrial and in case of plants chloroplast lines of descent। तो अगर आप देखा जाए तो उस जो मॉडर्न यूकैरियोट्स हैं ये इनको जेनेटिक मॉन्ग्रल्स कहते हैं। मॉन्ग्रल्स का मतलब है कि जिसकी अपनी कोई स्पेसिफिक ब्रीड ना हो, ऐसा एनिमल जो डिफरेंट ब्रीड्स या टाइप से आया हो। क्योंकि उनके अंदर देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया कहीं और से आया है, अगर प्लांट्स में देखें तो क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो उसकी लाइन ऑफ डिसेंट कोई और है। तो इस तरह से जो मॉडर्न यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो मतलब एक ब्रीड के नहीं हैं, उन्हें आप कह सकते हैं कि दे कम फ्रॉम डिफरेंट मल्टीपल ब्रीड्स। On the next two slides, I have added some very easy to understand animations for you, which will take you to a 3D tour of the cell and its organelles. So let's have a look. Let's talk about cells, the smallest living units of an organism. You need to know that all cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment, cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. You also need to know that there are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced, complex cells.
such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as the proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. As proteins move through the Golgi body, they are customized into forms that the cell can use. The Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes or adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates. Vacuoles are sac-like structures that store different materials. Here, in this plant cell, the central vacuole stores water. Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn-out cell parts. They are filled with enzymes that break down this cellular debris. The mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cells. During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria. Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are thin, hollow tubes. Now, some organisms, such as plants that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy, have cells with an organelle called a chloroplast. The chloroplast is where photosynthesis happens. It's green because it has a green pigment called chlorophyll. Plant cells also have a cell wall outside of their cell membranes that shape, support, and protect the plant cell. Animal cells never have a cell wall. That was the end of this topic about plant and animal cells. अब आपके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग
ये वेबसाइट्स हैं दो जो मैंने इधर कॉपी की हैं। आप अगर इन वेबसाइट्स पे जाएं तो आपको बड़े इंटरेक्टिव किस्म के मॉडल्स मिलेंगे जिनमें आप प्लांट और एनिमल सेल को देख सकते हैं, और उसके अंदर आप किसी ऑर्गेनेली को भी क्लिक करके तो उसका फंक्शन, उसका नाम और उसकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। ये बड़ी अच्छी एनिमेशन वाली वेबसाइट बनाई है इन लोगों ने। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद इनको चलाने के लिए आपको जावा वर्चुअल मशीन की भी ज़रूरत पड़े। तो अगर ये वेबसाइट आपसे करेक्टली नहीं खुलती तो यू शुड कंसिडर इंस्टॉलिंग जावा ऑन योर कंप्यूटर, और फिर ये आपके पास ओपन हो जानी चाहिए। मोस्ट मॉडर्न ब्राउजर्स शुड बी एबल टू ओपन दीज वेबसाइट्स। तो आप ज़रूर इन पे जाएं और इन मॉडल्स को देखें, बैक्टीरियल और जो प्लांट और एनिमल सेल के मॉडल्स इसके ऊपर दिए हुए हैं वो बड़े अच्छे और इंफॉर्मेटिव हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन एंड अल्लाह हाफिज़।